آئین سازی کی جو ہمارا عمل ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. میرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مسلسل اس آئینی ترمیم پہ جوڈیشل ریفارمز پہ انگیجمنٹ رہا ہے اور شکر الحمدللہ کہ کراچی کے ہمارا انٹریکشن انگیجمنٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کی 100% اتفاق جہاں تک جوڈیشل ریفارمز کی جو آئین سازی ہونا ہے اور اس کے کانٹینٹ کے بارے میں طے ہو چکا ہے. میں آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس موجود ہوں, میں نے مولانا صاحب سے یہ تجویز کی کہ جب کہ حکومت جلد سیشن بلا رہے ہیں, میرا خواہش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب JUI خود جو ہمارا آپس کا طے شدہ اگریڈ کنسنسس جوڈیشل ریفارمز کی لیجسلیشن ہے کہ مولانا صاحب خود وہ باقاعدہ پارلیمان میں پیش کرے. اس لیے جتنے یہ ڈرافٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اتنا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. جہاں ہم شروع ہوئے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آئینی عدالت بنانے تھے. اب ہم اتفاق اس بات پہ کیے کہ ہم نے آئینی بینچ PTI کے رہنما میڈیا کے باہر گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بانی سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں اسد کیسر, حامد رضا بھی شامل تھے. بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ بانی PTI کی صحت بالکل ٹھیک ہے, وہ ہائی اسپرٹ میں ہیں. بانی PTI کو 2 ہفتے تک اخبار نہیں دیا گیا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بانی PTI کے حقوق کا خیال رکھا جائے. پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ آپ کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے, کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے. اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا. یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے. خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسلٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آف دا اپوزیشن پارلیمان میں موجود ہے میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. وہ بھی بڑے ایکسپیرینس رکھتے ہیں, سارے بڑے سیزن پالیٹیشنز ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں. ان کے بھی وہ آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. اس سے پہلے مولانا کی رہائشگاہ پر اہم جو شخصیات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میرا بڑا پرانا تعلق ہے, نائب وزیر اعظم پہنچ چکے, وزیر اعظم پہنچ چکے. اگر مولانا کسی بھی صورت حکومت کی جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں رسک دکھاتے ہیں تو جو مینڈیٹ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ہے, پاسا طریقے سے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں اگر ہے وہ ہم ہیں. لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئیں گی ہمیں ایک جیسے سٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے. ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرافٹ موجود ہے اس پہ اب ہم چل ہی رہے تھے. اسی دوران ہم نے ملاقات کی. اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثوابدید ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے. لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں, دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں. صاحب ڈی چوک والے احتجاج کے معاملے پر آپ نے آگاہ کیا, سارا ایپیسوڈ رہا, اس کے اوپر ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں وہ سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا. خان صاحب جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ, اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈا پور کو حاصل ہے. سینیٹرز کا نام تو بتا دیں. یہ ہے ترمیم کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ اگر حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں تو
मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करेगी? देखिए हम आपको मौलाना साहब के साथ हम अटैच हैं, हमारी तरफ से अभी तक ना हमने नहीं किया है, इसलिए हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब इसको रहेंगे, और हम तो पहले से कहते चले आ रहे हैं कि इसमें जल्दी किस बात की है। अगर आपको नहीं चाहिए था और अभी आपने जो तरमीम लेके आए उसमें 65 ईयर्स का ख़त्म होना है, तो वो बात ख़त्म हो गई कि आप किसी पर्सन के लिए कर रहे थे, फिर किस बात की जल्दी है। इसमें अगर 1-2 दिन लग जाए तो कोई मज़ायका नहीं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब हमारे साथ रहेंगे। रावलपिंडी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दी, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में सिंगल कारकुन भी नहीं निकला आपका, क्या वजह? नहीं हमारे कारकुन इंशाअल्लाह ताला आपके लोग नहीं, वो हमारे कारकुन उस पार्टी पे ना मौलाना फजल रहमान पे है। हमसे जो हो सका था मुमकिन सियासी तौर पे वो हमने अब कर लिया। अब उन्हें पीटीआई पे है कि अगर आप संजीदा हो, सियासत में संजीदा हो, तरीके इंसाफ तो नाम आपका है, मेरा नहीं। जुडिशल रिफॉर्म्स आपको लाना चाहिए था, फिर आपको पेश करना चाहिए था। आज तक एक पॉइंट इन्होंने सामने नहीं लेकर आए। 2 महीने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। 2 महीने के लिए क्यों इंतजार कर रहा हूं? हुकूमत तो 2 महीने से मुझे कह रहे हैं, ताना मार रहे तकरीबन कि वो तो हमारे पूरे हैं, आप हमें देर कर रहे हैं। हमारे लिए, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के लिए, हमारा दस्तूर, हमारा आईन हमारे बड़ों का बनाया हुआ एक दस्तावेज है, हमारे लिए एक अमानत है। इसलिए मैंने ये दिन रात मेहनत किया कि पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू हम ये आईन साजी करें। और मैं चाह ये रहा हूं कि हुकूमत ये लीड ना करे, ये तासुर ना जाए कि हुकूमत का बिल अपनी जगह, मौलाना फजल रहमान साहब हमारा बिल लेकर आए, पार्लियामान जमहूरियत और हमारा आईन को बचाए, तो फिर ये हमारी सियासी फतह होगा, ये सियासी कामयाबी होगा इस पॉलिटिकल स्पेस में। अगर मैं पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ आईन साजी करता हूं तो वो असल जमहूरी को कामयाबी है। मेरा उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला इस दफा तरीके इंसाफ जात की सियासत नहीं, मुस्लिम सियासत है। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये अमेंडमेंट अगर हम सब के वोटों और हम सब के एतमाद से पास होता है आज, तो ये वैसे अमेंडमेंट होगा जैसे 18वीं तरमीम, जैसे 1973। अगर ये अमेंडमेंट खुदाना खासा पार्टी की इत्तेफाक के बजाय मेंबरान की अक्सरियत के जोर पे पास हो जाता है, हम अदालत तो बनाएंगे, मगर हम सियासतदानों का, इस पार्लियामान का ये शिकस्त होगा। हम जीत भी टेक्निकल ग्राउंड पे हमारा शिकस्त होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हम अक्सरियत की बुनियाद पे और इत्तेफाक की बुनियाद पे साजी नहीं करते। हमने पूरा कोशिश किया है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी पूरा कोशिश किया है, हुकूमत ने इनके पेशेंस का इंतहा दिखा दिया है। अब थोड़ा ही टाइम रहता है, उम्मीद है कि पीटीआई का वफद यहाँ आएगा और वो मौलाना फजल रहमान साहब के एक्सपीरियंस से सीखेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत से सीखेंगे और आखिरकार एक सियासी जमात बन के उनका अपना कामयाबी का जश्न मनाए। अगर खुदा खासा कि कोई अलग रास्ता लेता है तो जब पीटीआई उस आईन साजी के बाद अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं, तो मैं अभी से मीडिया को और आप सबको बता रहा हूँ, कसूर किसी और का नहीं, कसूर सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का होगा। आप सबका शुक्रिया। आप स्पोक्स पर्सन नहीं, स्पोक्स पर्सन है, हरगिज़ स्पोक्स पर्सन है, और उस पार्टी के दरमियान में बिलावल हाउस कराची तकरीबन तमाम चीज़ें हम
बानी पार्टी से हम इजाज़त लेना चाहते हैं, अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो उनकी ख्वाहिश पे बाकायदा हमने मौलाना साहब ने बिलावल साहब से और वज़ीर-ए-आज़म साहब से दरख्वास्त करके उनको टाइम भी लेके दिया है। अब हम मुंतज़र हैं, वो आएंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। मैं समझता हूँ मसवदे पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो हमारा मसवदा है वो दो पार्टियों का, उसको हमने मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून को भी हमने दिखा चुके हैं और उन्होंने भी कोई इस पर कोई इतना बड़ा एतराज़ नहीं किया है और पीटीआई भी उसको देख चुकी है, उन्होंने भी माना है। मैं समझता हूँ इस पे कंसेंसस से बात को आगे बढ़ना चाहिए और अगर हमने बिल्कुल यही करना है कि जी नहीं मानूं तो उससे मामला किसी और तरफ जाएंगे। आज सबका बहुत शुक्रिया। वो इंतजार कर रहे हैं या पीटीआई वालों के? आप हमारा आइन साजी को देर कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और जेयूआई का आईनी तरमीम पर 100% इत्तफाक हो चुका है। मेरी ख्वाहिश है मौलाना फजल रहमान खुद मुसवदा पार्लियामान में पेश करेंगे। हुकूमत का ड्राफ्ट अपनी जगह, मौलाना फजल रहमान अपना ड्राफ्ट लाए। पीटीआई कम अज कम मौलाना फजल रहमान के मुसवदे पर तो वोट दे। हमारे 2 सेनेटर उनके पास हैं, हम उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो सरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान खुद तरमीम पेश करे। पीटीआई कम अज कम मौलाना फजल रहमान के मुसवदे पर तो वोट दे। जितना ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी का है उतना ही जेयूआई का है। जो ड्राफ्ट मौलाना ने लिखा उसके लिए चाहता हूँ वो खुद पेश करें। चाहते हैं कि आईनी तरमीम हुकूमत के बजाय मौलाना फजल रहमान पेश करें। पीपल्स पार्टी और जेयूआई का 100% आईनी तरमीम पर इत्तफाक हो चुका है। आइन साजी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान खुद अपना आईनी मुसवदा पेश करें। आइन साजी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिलावल भुट्टो सरदारी का गुफ्तगू में ये भी कहना था कि मौलाना फजल रहमान जैसा ड्राफ्ट चाहते हैं वैसा ही है। हमारा 100% मुशावरत पे इत्तफाक हो चुका। बिलावल भुट्टो सरदारी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस हवाले से आपको अपडेट करें जिसका कुछ हिस्सा भी आपने मुलाहजा फरमाया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म के साथ दीगर पार्टियों के साथ भी हमारी मुशावरत जारी है और हमारा पीपल्स पार्टी और जेयूआई का आईनी मुसवदे पर 100% इत्तफाक भी हो चुका है। हम चाहते हैं कि मौलाना खुद अपना आईनी तरमीम पर मुसवदा पेश करें। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान खुद पार्लियामान में अपना मुसवदा पेश करें। हुकूमत का ड्राफ्ट अपनी जगह लेकिन मौलाना फजल रहमान अपना ड्राफ्ट लेकर आए। पीटीआई को कम से कम मौलाना फजल रहमान के मुसवदे पर वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन कौम की बेहतरी के लिए मुसवदे पर हाँ करनी होगी। चाहते हैं कि आईनी तरमीम हुकूमत के बजाय मौलाना खुद पेश करें। हुकूमत ने नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई का ड्राफ्ट का कहा और पीपल्स अभी तक पीटीआई ने अपना ड्राफ्ट पेश नहीं किया है जबकि पीटीआई को अपना ड्राफ्ट पेश करना चाहिए था। खैर हो गई, अगर उन्होंने अपना ड्राफ्ट नहीं भी पेश किया तो मौलाना फजल रहमान के आईनी तरमीम के ऊपर तो कम से कम उनको इत्तफाक करना चाहिए था, उस पर तो वोट देना चाहिए था। जो ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान ने तैयार किया है हम चाहते हैं कि वो खुद पेश करें। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान पीटीआई को कायल कर सकते हैं कि वो वोट दे दें। पीपल्स पार्टी और जेयूआई का आईनी तरमीम पर तो 100% इत्तफाक हो चुका है। मौलाना फजल रहमान के ड्राफ्ट को पीटीआई वोट दे सकती है। इस बात पर पीटीआई को आमादा करना होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो सरदारी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है मौलाना फजल रहमान खुद अपना मुसवदा पेश करे, हुकूमत आईनी तरमीम को लीड ना करे, ये मेरी ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान से ये दरख्वास्त करूंगा कि पार्लियामान में खुद पेश करे। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से बेनज़ीर मेहदी, ब्यूरो चीफ। बेनज़ीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमेशा से ये कह रही है कि इस 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट से पास करवाने के लिए बहुत ज्यादा होमवर्क किया है और हर मुमकिन सरतोड़ कोशिश कर रही है। कल पूरी रात भी इसी सिलसिले में गुजरी है और ये उम्मीद की जा रही थी कि मौलाना साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पर या हुकूमत के पास जो है अपना आईनी मसवदा जो है वो अब इसमें साथ देंगे और उनके अरकान जो है कौमी असम्बली और सेनेट में वोट करेंगे। लेकिन
جو ہے وہ رات گئے، جیسے بلاول بھٹو زرداری جو تھے وہ حیدرآباد گئے، اور تو پھر انہیں یہ خبر ملی کہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے اختلاف کر لیا ہے اور وہ اپنا ووٹ نہیں دے رہے ہیں۔ بار بار کامران مرتضیٰ جو کہ JUI سے کے سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو میڈیا پہ آگے بے کہا نظیر کہ تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہی تھی، شکریہ۔